हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग समराइज करने वाले हैं यूनिट आपका रेशियो एनालिसिस। ओके, सो मॉड्यूल सी विच इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जिसका लास्ट सेशन जहाँ पे हमने ओवरव्यू आपका डिस्कस किया था, तो आज से हम लोगों का लर्निंग आपका स्टार्ट होगा विद यूनिट नंबर 20th, which is all about ratio analysis, and you can expect at least 2 to 3 questions for 1 marks, or like downside 2 marks question based on this particular unit. ठीक है, most of time examiner they generally ask question based on रेशियो कैलकुलेशन। ओके, सो आपको रेशियोज को वहां पे कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए आपको रेशियोज याद होने बहुत जरूरी है। At least आपका those ratios which are generally part of your course curriculum, right? So which include a liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, market prospect ratio, turnover ratio. So these are some ratios which are generally part of your course curriculum. So you just have to make a list, एंड थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो बहुत बेसिक है और आसानी से आप इनको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं इनको देख के। ठीक है, so if you talk about ratio analysis, sometimes they also ask theoretical aspect of this particular one, like limitation of ratio analysis. There was a question based on this. Okay, and इसके अलावा आपका like what is a good range of like for current ratio for any organization, or it can be applied also. ठीक है, तो ये अलग अलग एरियाज आपका, तो विल गो थ्रू द एंटायर कोर्स कंटेंट एंड जिससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सो वी हैव मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, classification of ratios, uses of accounting ratios, limitation of accounting ratio, ठीक है, calculation and interpretation of various ratios, different user and their uses of ratios. Okay, so out of these four like this course content, so this part is very very important. These three subtopics are the most important. Okay, classification is very basic, like we have traditional and we have functional classification. ठीक है, so अगर आप लोगों को याद होगा, like whenever we talk about ratio analysis, it is somewhere like we have that entire process module A and B में हमने समझा recording, classifying, summarizing, आपका reporting, and then final one is interpretation. So ratio analysis is generally part of interpretation. Okay, recording in term of journal entries, then आपका classifying with the help of ledger, different ledger for each individual accounts. Then we have summarizing through trial balance. So it's a summary of all the ledger accounts. Then we have reporting. So we have trading accounts, profit and loss accounts, and balance sheet and cash flow statement, which we already covered in our मॉड्यूल ए एंड बी। आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट वन। अगर नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा। नाउ वी कम टू व्हेन वी कम टू इंटरप्रिटेशन पार्ट, द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो जहां पे हम लोग आपका जो फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है, सो वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा or numbers from final accounts, and we are making our decision about the company. ठीक है, let's say if being an investor I have to invest in some companies, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इन बहुत सारी कंपनीज में से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी कौन सी है, लाइक अब वो बेस्ट किस हिसाब से हो सकता है? इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इट कैन बी बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर, इट कैन बी बेस्ड ऑन डिविडेंड पर शेयर। तो हर एक का यूजेस आपका अलग अलग। ठीक है, लेट्स से if you want to check the liquidity of any organization, or like being a manager of that particular organization, if you want to check the runway which is available with the organization or firm, ठीक है, सो उसके लिए आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज हैं। वी हैव कैश रेशियो, एसेट्स रेशियो, कैश इन इक्विवेलेंट्स, ठीक है, आपका नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, ऐसे बहुत सारे। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म देखने के लिए अदर्स। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आपका जहां पे हम लोग रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट? So, ratio analysis. What is ratio analysis? It is a mathematical representation of those final numbers from your balance sheet or profit and loss account. We are using same. अब इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस शीट उनका जरूरत नहीं है। We do have requirements. उन्हीं से हम लोग आपका कहीं ना कहीं like for a layman बहुत टफ हो जाता है बैलेंस शीट को समझना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझना, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और हर एक के साथ आपका नोट टू अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, सो दे कैन गो विद द ईपीएस और आपका डीपीएस और पी रेशियो। तो मॉडल आपका बनाया गया, जस्ट टेक दोज नंबर्स,
आप अपना कैलकुलेशन और इसके हिसाब से लाइक जो डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से एक टूल आपका दैट इज दिस वन, आप उसको अप्लाई करो, सिंपल से खत्म करो चीजें, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अगेन एंड अगेन, राइट। So ratio analysis is a quantitative procedure of obtaining firm functional efficiency, how that organization is doing, basically how they are using their how they are utilizing their resources, ठीक है। इसके अलावा लिक्विडिटी मींस हाउ दैट कंपनी इज गोइंग टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो उस कंपनी के ऊपर आपकी जो लाइबिलिटीज हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लिक्विडिटी इज ऑलवेज यूज फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो उनको कैसे वो मीट करने वाला, ठीक है। रेवेन्यूज आपका प्रॉफिटेबिलिटी वी कैन सी, तो जहां पे ग्रॉस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन और रेशियो, सो यहाँ पे ठीक है इनसे रिलेटेड बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट। financial records means your profit and loss, or sorry, financial record and statement means profit and loss accounts, your balance sheet, ठीक है। so it is a technique which involve regrouping of data applications of arithmetical relationship through the interpretation is a though its implementations or interpretation is कॉम्प्लेक्स मैटर, ठीक है। तो जो मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेटा है आपका बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको एक इजी वे में आपको प्रेजेंट करके बता रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर सम की ऑब्जेक्टिव्स जो थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। टू नो द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड more attention after that analysis, it will help stakeholders to know the potential areas which can be improved with the effort of desired direction, to provide a deeper analysis of the profitability, liquidity, solvency, efficiency levels, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी नो, ठीक है, जैसे हमने आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी। लिक्विडिटी मींस हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। सॉल्वेंसी इज ऑलवेज लिंक विद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, ठीक है, हाउ लाइक उस कंपनी के जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन वो कैसा बना हुआ है, ठीक है। और जैसे आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट पे आउट रेशियो, जैसे उसने जो टोटल डेट आपका लिया है तो उस पर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी जहां पे आपका एक्टिविटी टर्नओवर्स, इनके थ्रू हम लोग आपका जानते हैं, ठीक है। सो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, दिस बहुत बेसिक थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे आपके बुक के हिसाब से भी देखें सेम चीज है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट है बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उनको सिंप्लीफाई करेगा। फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बोला बीइंग एन इन्वेस्टर, इफ आई हैव टू कंपेयर अमंग 5 कंपनीज कि कौन सी कंपनी का बेस्ट पी रेशियो है, by just applying that particular P ratio, I can come to the conclusion, right? इंट्रा फर्म आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके जो भी हैं उनमें, ठीक है। हेल्प इन प्लानिंग, ठीक है। ये इंट्रा फर्म मींस लाइक जैसे वी आर रनिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट ए बी सी डी, अब इन चारों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हेल्प इन प्लानिंग आपका, ठीक है, जो ओवरऑल प्लानिंग है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ type of ratio analysis, so we have two type of classification, one is traditional, another one is functional, ठीक है। तो जो ratios आपके हैं वो आपका ट्रेडिशनल और आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन में, ट्रेडिशनल आर फर्दर डिवाइडेड, आपको सिर्फ ट्रेडिशनल याद रखने, मतलब इंपॉर्टेंस किसका है, इसका है, ठीक है। आज के डेट में फंक्शनल के हिसाब से यूज होते हैं। एंड जब अगर उसने कभी आपको क्वेश्चन दे दिया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे लिस्ट थोड़ा सा बड़ा है, जैसे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, मार्केट प्रोस्पेक्ट, आपका इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ 3 नाम है, इसलिए मैंने बोला कि यू शुड रिमेंबर दिस, मेमोराइज, ट्राई टू रिमेंबर दीज 3, ठीक है। कौन कौन से, सिर्फ 3 आपका, ठीक है। पहला फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। सो बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो। सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट रेशियो, ठीक है। अब देखो क्या होता है बैलेंस शीट रेशियो, जहां पे जो बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट्स, ठीक है, वेयर वी प्रोवाइड कंपैरिजन बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, सपोज दैट दिस इज इक्विटी, दिस इज डेट, ओके, तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so two components where we compare two variables of profit and loss account only, ठीक है। Composite is
where we use one variable of how we use composite, one variable from profit and loss account and another variable from balance sheet. So if we are comparing these two, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ का एक यहाँ, इसका इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, so that is known as composite. As simple as that. बहुत ही आसान है, ठीक है. So this is traditional one, ठीक है. आज के डेट में ये यूज नहीं होता. आज के डेट में हम लोग आपका फंक्शन वाइज यूजेस बेस आपका, लेट्स से being a manager, if I have to check the overall liquidity of the organization or even the overall working capital which we generally need to run the organization for next 1 year or 2 years, 3 years, 10 years, ठीक है. तो हमें हमें पता है कि यार लाइक लेट्स से हमारी जो ऑब्लिगेशंस आपकी हैं वो कितनी हैं और उसके हिसाब से हमारे पास करंट एसेट कितने हैं, ठीक है. तो हमारे पास वी कैन गेट टू नो कि हाँ इतने समय के लिए हमारे पास फंड्स है. अगर हम लोग अगर फंड्स की कमी होती है सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल, हमें कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. तो वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है. या जैसे लेट्स से कंपनी XYZ दे कम अप विद अ न्यू बॉन्ड, उन्होंने एक बॉन्ड लॉन्च किया 10 ईयर का. इफ बीइंग एन इन्वेस्टर, इफ आई हैव टू चेक कि यार ये कंपनी इंटरेस्ट पे आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है, अगले 10 साल तक, तो आई विल गो विद इंटरेस्ट पे आउट रेशियो, ठीक है. या फिर इसके अलावा जैसे मैंने इन्वेस्टर का आपको बताया शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, सो वी यूज EPS, पी रेशियो, DPS. तो ये सारी चीजें आपको, तो फंक्शन वाइज आपका अगर मुझे देखना है कि यार इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना और नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है, दोनों में कितना वेरिएंस आ रहा है, तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. अगर हमें लगता है कि जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था 50 करोड़, नेट प्रॉफिट इज ओनली 2 करोड़, ठीक है, सो वाई ये 48 करोड़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सो हम उसको कट डाउन करके वी कैन इंक्रीज आर आपका नेट प्रॉफिट एज अ मैनेजमेंट. तो ऐसा यूजेस बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है. जैसे आपका लिक्विडिटी रेशियो, देन वी हैव सॉल्वेंसी, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज, वी हैव एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, ठीक है. वी हैव मार्केट प्रोस्पेक्टस रेशियो, ठीक है, मार्केट प्रोस्पेक्ट. वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ऐसे अलग अलग कैटेगरीज. तो जो यूजर आपके हैं, जिनको यूजर को जिस टाइप का डेटा चाहिए, जिस एरिया में आपकी फंक्शनलिटी है, उसके हिसाब से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल वन, ठीक है, तो ट्रेडिशनल वन में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, अ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Balance sheet ratio, in case of both variables are from balance sheet. Composite is if ratio one component is from your balance sheet and another variable is from your profit and loss account, so that is called composite. ये मैं आपको क्यों बोला, ये तीन बहुत ही बेसिक है, फाइनल स्टेटमेंट पे है. इनके अलावा जो भी है सब आपका फंक्शनल है, तो इसलिए याद रखेंगे, ठीक है. जैसे फंक्शनल में यू कैन सी हियर वी हैव अ लिस्ट. जैसे आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, अगर आपको मतलब तरलता इसको हम लोग बोलते हैं, इफ यू वांट टू चेक दी शॉर्ट उस कंपनी की जो लिक्विडिटी है, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है कि हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जिसको हम लोग आपका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मींस आपका करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. सॉरी, करंट लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मींस करंट लाइबिलिटीज. सो करंट लाइबिलिटीज यू विल मीट विद योर करंट एसेट, ठीक है. तो इन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ठीक है. तो जिसमें आपका करंट रेशियो, कैश एंड इक्विवेलेंट रेशियो, आपका एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, इट इज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, ठीक है. ये आपका जनरली कंपनी की जो लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग है उसको आपका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है. एज दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म, ठीक है. अगला आपका जिसमें आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट पे आउट रेशियो, आपका इक्विटी रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज आपको यहाँ पे मिलेंगे. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, ठीक है. हाउ इफेक्टिवली वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, ठीक है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना है थ्रू, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट आते हैं. कौन सा? ग्रॉस रेशियो, ठीक है. देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. ये बहुत बार पूछे जाते हैं और आरबीडब्ल्यूएम के अंदर जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे भी ये रहता है, तो इसको ध्यान रखना है. मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियो के अंदर आपके सिलेबस में EPS एंड PE रेशियो दिया गया, सो जस्ट रिमेंबर दिस वन, ठीक है. सो EPS आपका अर्निंग पर शेयर एंड PE रेशियो आपका, ठीक है. सो ये दो रेशियोज आपको दिए गए हैं, सो डू रिमेंबर दिस, ठीक है. आपको जितना लिमिटेड कंटेंट है, जितना आपके पार्ट है उतना ही रखना है, ठीक है. तो पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं. लिक्विडिटी रेशियो आर हेल्पफुल टू डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट इट्स
शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन, सिंपल सा। तो जिसमें हमारे पास कौन कौन से रेशियोज हैं, जैसे करंट रेशियो, कैश रेशियो, क्विक रेशियो एंड नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ जिससे आसानी हो जाए, ठीक है। सो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, तो दिस इज योर करंट रेशियो। कैश रेशियो आपका कैश डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। आपका कैश एंड इक्विवेलेंट, सॉरी, ठीक है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय आपका करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा क्विक रेशियो, जिसको हम लोग एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज। ऐसे ही आपको बिल्कुल याद रख लेने अपने फिंगर टिप्स पे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है आपका, अगेन करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो ये आपके रेशियोज। एंड इनिशियली जब आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा ओपन चीटिंग कीजिए, ठीक है, मतलब जब आप क्वेश्चन देखते हैं उसको देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला को देखिए, ऐसे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला आपका सॉल्वेंसी रेशियो आर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ कंपनी इन लॉन्ग टर्म, जैसे हमने इसके ऊपर बात भी किया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। So it is used to determine the long-term viability of the organization. It include जैसे debt to equity ratio, ठीक है। Again I'll mention ratios here. तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा आपका होगा, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है, सिंपल सा। डेट टू इक्विटी मींस, डेट मींस आउटसाइड लाइबिलिटी, जो उसने आपका लोन्स लिए या अदर्स, इक्विटी मींस ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा डेट रेशियो आपका टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। इक्विटी रेशियो टोटल इक्विटी डिवाइड बाय एसेट्स, टोटल एसेट, ठीक है। सो मतलब डेट डिवाइड बाय एसेट्स और आपका इक्विटी डिवाइड बाय एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट पे आउट कवरेज रेशियो, इट इज आपका जो इबिट होता है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इबिट डिवाइड बाय टोटल एसेट और समथिंग, आई जस्ट मिस दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक्टिविटी रेशियो टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, जो एक्टिविटीज मतलब बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज द आउटकम। प्रॉफिटेबिलिटी, तो जो कंपनी की प्रॉफिट है, तो जिसमें आपका कौन कौन से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। देन दूसरा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, इनकी अच्छी बात है, सब में सेल्स डिवाइड होगा। एंड तीसरा आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो और मार्जिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। अगर परसेंटेज में है तो इनटू 100, सब में आपका इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में ही आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज द वन। तो बहुत ही बेसिक आपके रेशियोज, ठीक है। मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियो, जिसमें आपका मार्केट प्रोस्पेक्ट, इन्वेस्टर टू प्रिडिक्ट हाउ मच दे विल अर्न फ्रॉम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो जिसमें डिविडेंड यील्ड रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपके सिलेबस के अंदर है कौन से दो रेशियोज, पहला ईपीएस आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है, तो जितना है उतने पे फोकस रखेंगे, ठीक है। सो ईपीएस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। पी रेशियो आपका, ठीक है, पी रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। अब बहुत बार आप लोग ऐसे फेस करेंगे, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि they'll ask examiner will ask you to calculate a p ratio, ठीक है, वो आपसे p ratio कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। जैसे वो आपको क्वेश्चन दे देगा, there is a company whose profit after tax is suppose that 10 करोड़, ठीक है, and dividend distributed is 1 करोड़, then आपका suppose that total number of shares, ठीक है, number of shares are suppose that 1 crore, ठीक है, 1 crore, and current market price of the share is suppose that current market price of the share is 50 rupees, ठीक है। कैलकुलेट, उसने बोला आपको कैलकुलेट पी रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म, तो पी रेशियो कैसे निकालेंगे आप इसका, ठीक है, बहुत आसान है। तो पी रेशियो हमें क्या चाहिए, आपका करंट मार्केट प्राइस है आपका 50, ठीक है, डिवाइड बाय, अब पहले आपको ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ईपीएस इज आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ एंड डिविडेंड इज 1 करोड़, ठीक है, तो दिस विल बिकम योर 9 करोड़ आपका। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपका, 1 करोड़, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 9। तो
ईपीएस ऑफ दिस कंपनी इज कितना 9, ठीक है। सो अब आपका 50 डिवाइड बाय 9 जो भी आपका नंबर निकलेगा दैट इज योर पी रेशियो। ऐसे आपको इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन देगा एंड दे विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। सो बिलीव मी गाइस, बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन उसने दिया, सिंपल सा यूसेस में आपका, ठीक है। तो कुछ रेशियोज मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, जो आपके कोर्स करिकुलम में है। तो आप इनको गो थ्रू कीजिएगा एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका चीजों को समझने में, ठीक है। सो जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट, आरओए एंड आपका आरओई, ठीक है। सो आरओए एंड आरओई, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपका आप लोगों को ना ये जो चार्ट आप पीछे देख रहे हैं ये आरबीडब्ल्यूएम के जो मॉड्यूल है यूनिट नंबर 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पे भी आपका एएफएम में क्वेश्चन पूछे ना पूछे बट आरबीडब्ल्यूएम के अंदर हर साल ये क्वेश्चन इनके ऊपर आपका वो पूछ रहा होता है। सो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज इट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो रेशियो एनालिसिस का जो फेयर है ना वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो कैसा लगा वीडियो आपका जरूर कमेंट्स में लिख के बताएं, ठीक है। एंड once we'll done with this summary sessions, I'll come up with unit wise MCQs। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मतलब एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया हो चीजों के बारे में। एंड बिलीव मी गाइस, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस कंटेंट, आने वाले एग्जामिनेशन में विदाउट एनी फेयर यू विल स्कोर 70 प्लस, ठीक है। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। बट द ओनली थिंग इज डू नॉट स्किप एनी पार्ट। अब जैसे जिन लोगों ने मॉड्यूल ए और बी आपका नहीं देखा है अभी उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आप नाउ यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी कल का सेशन जो था बेसिक इंट्रोडक्शन था, उससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। सो फर्स्ट कवर मॉड्यूल सी, देन आपका डी, देन उसके बाद आप ए और बी में आ जाइए। इस तरीके से आप अगर रेगुलर बेसिस पे अपना शेड्यूल बना लेंगे ना तो बिलीव में आने वाले समय में बहुत मजा आएगा और बहुत बढ़िया स्कोर आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात किया रेशियो एनालिसिस का। आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स को चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएंगे सब लोग, और अगर अच्छा लगा है और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज शेयर करें। और इसके अलावा अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी आप सेशंस को शेयर कर सकते हैं। 6 अगस्त 2024 जब से आपका जेआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फॉर अक्टूबर नवंबर शिफ्ट, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर वाले पेपर को अगर आप देखते हैं तो 2 पेपर आपके एक साथ होंगे, पहला है एएफएम और दूसरा है आपका पीपीबी, मतलब इंडियन इकोनॉमी एक वीक में, देन अगले वीक में आपका सैटरडे संडे, सेकंड सैटरडे आपका आ रहा है। तो आपका 2 पेपर एक साथ होंगे, तो अभी से बिल्कुल दोनों के लिए रेडी रहना। एएफएम थोड़ा सा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। एक थोड़ा सा माइंडसेट भी है, न्यूमेरिकल का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दूसरा पीपीबी इज क्वाइट लेंथी। अगर मैं एक एग्जामिनर हूं तो इंडियन इकोनॉमी एंड आपका इंडियन इकोनॉमी एंड पीपीपी ये दो ऐसे पेपर है ना जिनको सबसे ज्यादा टफ बनाया जा सकता है। एएफएम इज लाइक कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट पता है, आप कुछ भी कर लो, कॉन्सेप्ट के अराउंड ही तो करोगे ना जो भी करोगे। बट वहां पे ना पीपीबी के अंदर वी हैव 53 यूनिट्स, तो स्टेटमेंट ओरिएंटेड अगर बना दिया तो फंसा सकता है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो करंट और आपका स्टैटिक का कॉम्बिनेशन बना सकता है। बट एएफएम इज लाइक कि ये कॉन्सेप्ट है यही है, ठीक है। 10 साल पहले भी ये थे, 10 साल बाद भी ये रहेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज पी रेशियो। अब पी रेशियो आपने समझ लिया, उसका यूज समझ लिया, सो दिस इज ए स्कोरिंग वन, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ आप पढ़ो चीजों को तो आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल। आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM with a unit number 21. Okay, so bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.